علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے مزاج کیسے ہیں اور آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے زندگی اچھی چل رہی ہے. بھائی جان آپ کہاں رہتے ہیں؟ بھائی جان میں اسی بستی مری ماتا میں رہتا ہوں. بھائی جان کس مکتب میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ بھائی جان میں اسی مکتب اشاعت دین میں دینی تعلیم حاصل کرتا ہوں. اگر میں آپ سے کوئی دینی معلومات کروں تو کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ جی ہاں، جو علم میں نے اللہ تعالیٰ اور اپنے استادوں کی محنت سے سیکھا ہے بتلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اچھا بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. حدیث میں آیا ہے اول ما خلق اللہ نوری. اچھا بتائیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا چیز پیدا فرمائی؟ میرے بھائی، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چیز پیدا فرمائی وہ کلمہ طیبہ تھا. اچھا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کون سا درخت پیدا کیا؟ بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کھجور کا درخت پیدا کیا. اچھا بتائیں کہ لوح محفوظ پہ سب سے پہلے کیا لکھا؟ سب سے پہلے لوح محفوظ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اول یعنی سب سے پہلے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا؟ میرے بھائی، جس جگہ خانہ کعبہ ہے اول اس جگہ کو پیدا کیا اور چاروں طرف زمین پھیلا دی. اچھا بتائیں کہ فضیلت قرآن میں کس نے تصنیف کی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. قیامت کے دن سب سے پہلے کون اٹھیں گے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. اچھا بتائیں کہ بھائی جان ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کی حضور تعلیم میں تو بہت محنت کی ہے. میرے بھائی، ہر کام میں محنت کرنا چاہیے، علم دین میں تو اور زیادہ محنت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے مبارک علم دین سے نوازے، آمین. اچھا بھائی، اب اپنی محنت سے پڑھا کریں گے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. امن بھائی، غالباً آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں بھای، کوشش تو کرتا ہوں، کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو جناب آپ مجھے بتانے کی زحمت فرمائیں. امن بھائی، یہ تو مجھ جیسے کی خوش قسمتی ہے جو آپ مجھ سے کچھ معلومات حاصل کریں گے. کیا آپ قرآن کریم کو جانتے ہیں؟ ہاں بھائی، میں قرآن کریم کو جانتا ہوں. اچھا تو بتا، قرآن کریم کی سب سے پہلے اور پہلی سورت کب نازل ہوئی؟ میرے پیارے بھائی، قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ علق 18 رمضان المبارک کو سن 1 ہجری میں نازل ہوئی. اچھا تو بتا، سب سے پہلے مدینے کی طرف کس نے ہجرت فرمائی؟ میرے پیارے بھائی، مدینے کی طرف سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی. اچھا تو بتا، سب سے پہلے مسجد کہاں اور کب بنی؟ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے جس کی تعمیر سن 2 ہجری میں ہوئی. اب یہ بتاؤ، سب سے پہلے جمعہ کب اور کہاں پڑھا گیا اور کس نے پڑھایا؟ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پڑھایا گیا. اچھا، مکہ معظمہ میں سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ میرے پیارے بھائی، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے مکہ فتح کی اذان سن 8 ہجری میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی. اچھا تو بتا، سب سے پہلے 2 رکعت عید الفطر کب پڑھائی گئی؟ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے 2 رکعت عید الفطر سن 2 ہجری میں پڑھائی گئی. اچھا تو بتا، سب سے پہلے جنگی معرکہ کب ہوا؟ سب سے پہلے جنگی معرکہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا. اچھا، اس عورت کا نام بتا جو عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہوئی. سب سے پہلے عورتوں میں مظلومی انداز سے شہید ہونے والی عورتیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں. بھائی صاحب، آپ سے مل کر بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی اور یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی. ہماری بستی میں دینی معلومات کا کافی بڑا مدرسہ کامیاب ہو گیا. امن بھائی، یہ تو اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے گھروں میں دینی مدرسے جاری فرما دیے ہیں. دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک ہمارے استاذ کو دونوں جہاں کی عزت عطا فرمائے. اچھا بھائی، پھر ملاقات ہوگی. اچھا بھائی، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ جزاک خیر. اس کے بعد نعت کائنات خان تیار ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن کیا بات ہے، کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، ایسی کیا مشغولیت اختیار کی ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ ارے بہن، وجہ کیا عرض کروں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے، بس یہی مشغلہ ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا
बात को तो दिल से ही निकाल दीजिए। कुरान मुकद्दस तो वो किताब है जिस कौम और जिस कबीले में भी फिर हम लोगों की ज़बान और कल्ब में इतनी ताकत कहाँ कि हम औशाम व फ़ज़ाइल में एक करिश्मा भी बयान कर सके। इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुरान करीम तमाम अहमियत का हामिल और तारीख की इबरत आमूज़ वाक़िआत से भरा हुआ है। इस मुनासिबत से मेरे ज़हन में ये बात वारिश कर रही है कि कुरान करीम के अज़मत और हकीकत के मुताल्लिक़ खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। अगर हम इस मुकद्दस किताब यानी कुरान करीम कुरान मजीद को पहाड़ पर लाता, वाकई आपकी बातें सुनकर मेरे दिल में ज़हन में करती चली गई। बस एक बात और मेरे ज़हन में वर्जिश कर रही है, वो है ये कि जब कुरान करीम इतना बड़े कमालात और खुसूसियात का हामिल और मुसलमानों के लिए हिदायत का तोहफा है और इसके एक एक लफ्ज़ में इतनी तासीर है, तो इसको पढ़ने पर सवाब की क्या मिक़दार हो सकती है। तफसील के साथ जवाब मतलूब है। देखिए बहन, कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने और तिलावत का सवाब मोहताज तारुफ नहीं है। तमाम उलमा भी इस पर कोई जिक्र कुरान करीम से ज़्यादा सवाब नहीं रखता। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान करीम पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियां मरहमत फरमाता है। और मखसूस फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। और मकसूद है ये सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने में 30 नेकियां मिलती हैं। वाकई आपकी बातें सुनकर मेरे दिल ने मुझको इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं भी मैं अपना नाम शुमार कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ताला हमें भी कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व मोहसिन फर्जी टिकट पर आ जाए। मोहसिन फर्जी बच्चा लेकर कहाँ जा रही हो? क्या बात है? बहन, मैंने मन्नत मांगी थी कि खुदा मुझे लड़का देगा तो मैं बाबा की दरगाह पर हाजिरी दूंगी और बाबा का तवाफ करूंगी और उनकी मज़ार शरीफ पर सजदा करूंगी, मदार साहब का मलीदा करूंगी और एक बकरा ज़िबा करूंगी। खुदा ने मुझे लड़का दे दिया है, मैं बकरा लेकर मज़ार पर जा रही हूँ। तौबा तौबा बहन, ये तो तुम बहुत बड़ा जुल्म कर रही हो। बाबा की मज़ार पर सजदा, मदार साहब का मलीदा, पुराने पीर की असली मुहर्रम का खिचड़ा, ये तो मेरी रियालत है। अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला अमल है। अरे ये तुम क्या बक रही हो? क्या बाबा की मज़ार पर जाना और वहाँ जाकर वाले स्टेज से करीब हो जाकर मदार साहब के और वहाँ जाकर खाना नहीं खाया हो, खाना खा ले। मदार साहब के और वहाँ जाकर मदार साहब का मलीदा करना जुल्म है, मलीदा करना जुल्म है और सजदा करना और मदार साहब के नाम से एक बकरा ज़िबा करना जहालत है। मेरी प्यारी बहन, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैंने कई बार आलिम लोगों से सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि उसकी महफिलों में शरीक होना हराम है। किस तरह मज़ारों पर खुराफात जैसे चंदल, उरस, गाने बजाने और ढोल तमाशा, कव्वाली सुनना, कब्रों पर सजदा करना, कब्रों को छूना और अल्लाह की वलियों से मुरादे मन्नत मांगना, ये सब शिरक है जो नाजायज़ और हराम है। मगर हमारे पीर साहब भी तो कहते हैं कि दरगाह शरीफ जाना चाहिए, इससे ईमान ताज़ा होता है और कहते हैं कि दरगाह शरीफ का तवाफ करना चाहिए और कब्र पर सजदा करना चाहिए। इससे बाबा साहब खुश होकर हमारी बिगड़ी भी बनाएंगे और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। मेरी प्यारी बहन, आप तो बहुत ही नादान हो। आपको मालूम होना चाहिए कि
दुनिया को पैदा करने वाला, सारे आलम का रज़्ज़ाक़, जन्नत और जहन्नम का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। तमाम ताकतें अल्लाह के हाथ में है। बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। वो अकेला है, वो बेनियाज है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। कायनात का जर्रा जर्रा उसका मोहताज है। अंबिया उसके मोहताज है, औलिया उसके मोहताज है, अमीर उसके मोहताज है, गरीब उसके मोहताज है, हर एक उसका मोहताज है। जब बताए तमाम ताकतें लाई के हाथ में है, तो बाबा साहब कैसे भूली बनाएंगे। वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने लोगों को हमेशा यही सबक दिया था, पेशानी अल्लाह के सामने झुकाओ, सजदा अल्लाह के लिए जायज़ है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा करना अल्लाह शिरक है। अल्लाह के सिवा किसी से मन्नत मांगना, औलाद मांगना, ये सब शिरक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेंगे, मुशरिक के अलावा जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे। बहन, इस वक्त की बातचीत से मुझे काफी कुछ समझ में आया है। आप ये तो बताओ, इतना सब कुछ आपको कहाँ से मालूम हुआ? अरे बहन, सीधी सी तो बात है, इनकी जगह इल्म मिलता है। हम मकतब में पाबंदी से पढ़ने के लिए जाते हैं। कहा हमको कुरान करीम की तालीम के साथ साथ दीन के 5 अहम शोबे, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशियात, अखलाकियात भी सिखाया और पढ़ाया जाता है। अच्छा बहन, आप कौन से मकतब में पढ़ती हैं? क्या नाम है आपके मकतब का? इंशाअल्लाह मैं भी अपने वालिद से कहकर अपना और दूसरे बच्चों का एडमिशन करवाऊंगी। मैं मकतब इसाते दीन में पढ़ती हूँ। पहले अपने ही मुराद में पाबंदी से पढ़ाया जाता है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मैं आपसे हज़रत मेहदी आखिरुज़्ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे? जी हाँ, पूछिए। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत मेहदी आखिरुज़्ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हु किसे कहते हैं? हज़रत आखिरुज़्ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हु मोहम्मद इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह। भाई, खाने के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो उनको खिला दें, कोई मसला नहीं है, कोई उठाए नहीं, किसी को खा लाए तो खिला दें। है जो क़यामत के करीब पैदा होंगे और उन्हीं के ज़माने में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हज़रत मेहदी आखिरुज़्ज़मा और उनकी वालिदैन का नाम क्या होगा? हज़रत मेहदी आखिरुज़्ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। उनकी वालिदा के नाम की सराहत हदीस में नहीं मिलती। हज़रत मेहदी आखिरुज़्ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हु किस खानदान और किसकी औलाद में से होंगे? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद में से होंगे। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी कहाँ पैदा होंगे और लोग उनसे पहली मर्तबा कहाँ बियात करेंगे? मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और लोग उनसे पहली मर्तबा रुकने यमानी और हज़रत असवद के दरमियान मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में बैअत करेंगे। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी कितने साल हुकूमत करेंगे और उनका इंतकाल कब और कहाँ होगा? 7 या 9 साल हुकूमत करेंगे। उसके बाद बैतुल मक़दिस में उनका इंतकाल होगा। फिर वही मुसलमान उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़कर दफन करेंगे। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत मेहदी आखिरुज़्ज़मा रज़ी अल्लाह तआला का ज़ुहूर पहले होगा या ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल पहले होगा और दज्जाल व याजूज माजूज का खुरूज कब होगा? हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़ुहूर पहले होगा, इसके बाद मसीह दज्जाल का, फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर दज्जाल को कत्ल करेंगे, फिर याजूज व माजूज का खुरूज होगा। हज़रत मेहदी यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और ईसा अलैहिस्सलाम के एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं।
दोनों अलग अलग शख्सियतें हैं। एक का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और दूसरे का नाम ईसा इब्न मरियम है। एक कुर्ब क़यामत में पैदा होंगे और दूसरे पैदा होकर आसमान पर हैं, वहाँ से नाजिल होंगे। क्या हजरत मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी होंगे या नबूवत का दावा करेंगे? वो नबी नहीं होंगे, ना उन पर वही नाजिल होगी और ना ही वो नबूवत का दावा करेंगे, बल्कि वो उम्मत मुहम्मदिया के एक खलीफा राशिद होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।